Yes, hello everyone. Welcome you all to the course of heat transfer, that is HT. Before I start with anything, there are a lot of questions which students have been asking me in these years. It has been almost 10 years since I've been teaching this subject. In fact, this was among the first subjects which I have taught. So obviously, I have a special attraction towards the subject. Not only because I taught it for the first time, because I actually like the subject, because there is a lot of things to learn, too much of concepts, too many applications. Day to day life, maybe there are many applications that you will be seeing. So that is why give me some time out of your life. I'll take the subject and put it into your head in such a way that even you will start liking the subject the way I do. With that said, let us start with this subject. Now, what students actually ask me is, sir, is this subject difficult? Are there many numericals in this? Is this conceptual? Is this theoretical? Keep everything aside. ये सब चीज को keep it aside. And मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो. Forget about numericals. Forget about theory. Let us worry about few concepts जो तुम्हें मालूम रहना चाहिए. If you know these concepts, if you know the formulas, if you know how these formulas come up and when to use this, in short, you know the entire chapter. Then you can use your brain and try to apply these numericals, these formulas elsewhere. So I'm sure you will understand what I'm teaching. Try to enjoy it and try to like the subject. Your syllabus of heat transfer is basically divided into three parts. First is conduction, second is convection, and third is radiation. All three are different modes of heat transfer. When I say modes of heat transfer, suppose yahan se I want to go somewhere. There are different ways I can go. I can go by train, I can go by bus, I can go by auto, I can go by cycle, I can go by bike, I can go. There are many ways by which I can go. Same way, अगर हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने का है, there are many ways हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा सकता है. Out of that, I have taken three mainly, that is conduction, convection and radiation. Yes, तुम्हारे सिलेबस में और भी बहुत कुछ रहेंगे, एक्सटेंडेड सरफेस, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, बहुत सारे रहेंगे. लेट अस कीप दैट असाइड, लेट अस नॉट वरी अबाउट इट. फिलहाल के लिए लेट अस स्टार्ट विद दीज थ्री एंड स्लोली वी विल ट्राई टू ब्रिंग देम आल्सो इनटू द पिक्चर. यस, सबसे पहले कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. टेक्स्ट बुक डेफिनेशन आप लोग ने देखा रहेगा. कंडक्शन का डेफिनेशन अगर मैं पूछा तुम लोग को, तुम लोग धे ले धनाधन बोलोगे, ये डेफिनेशन है. कन्वेक्शन का टेक्स्ट बुक से मिलेगा या कोई भी बुक से मिलेगा, गूगल में सर्च मारो मिलेगा. रेडिएशन, यस ठीक है मिलेगा. अपना काम जो डेफिनेशन मिला है, आवर वर्क इज टू अंडरस्टैंड दैट जो डेफिनेशन हम लोग को मिला है. नाउ कंडक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है? हीट फ्लो थ्रू अ सिमिलर मीडियम is called as conduction, या फिर solid medium is called as conduction. एग्जाम्पल लू, अगर सपोज मेरे पास एक दीवार है, ये दीवार के अंदर से अगर हीट फ्लो हो रहा है, एक दीवार है, दीवार के अंदर से अगर हीट फ्लो हो रहा है, yes it is conduction because the wall is conducting heat and it is transferring it over there. लिटरली जो डिक्शनरी मीनिंग है कंडक्शन का, वही सेम चीज इधर भी होता है. बट याद रख, इधर इंपॉर्टेंट वर्ड था सॉलिड है. वाटर ले, वाटर को हीट मिला, वाटर ने हीट खुद वाटर को ही दे दिया. क्या दिखता है बेटा? सेम मीडियम है. लिक्विड था वाटर, लिक्विड है. सॉलिड था, सॉलिड है. कंडक्शन है. व्हेन यू हैव द सेम मीडियम चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन. तो सवाल उठता है कन्वेक्शन क्या हो गया सर? तो कन्वेक्शन क्या है? नो, कन्वेक्शन इज व्हेन डिफरेंट मीडियम कम्स अप. सपोज मेरे पास एक दीवार है, वो दीवार ने हीट वाटर को दिया, तो आई हैड सॉलिड, सॉलिड ने हीट लिक्विड को दिया. यस, डिफरेंट मीडियम्स आ गए. डिफरेंट मीडियम्स जैसे आएंगे दैट बिकम्स कन्वेक्शन. और एक लिक्विड है, लिक्विड ने हीट गैस को दे दिया. डिफरेंट मीडियम, मैं मीडियम बोल रहा हूं बेटा. जब मैं बोलता हूं मीडियम, आई टॉक अबाउट थ्री बेसिक मीडियम्स. एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस. सॉलिड से लिक्विड गया, कन्वेक्शन. लिक्विड से गैस गया, कन्वेक्शन. सॉलिड से सॉलिड गया, कंडक्शन. लिक्विड से लिक्विड गया, कंडक्शन.
गैस से गैस गया, कंडक्शन। डिफरेंट, एक ब्रीड से दूसरे ब्रीड में जम मार, तभी जाके यू गेट कन्वेक्शन। और अगर ऐसे कई कंडीशन आया जहां पे मीडियम ही नहीं मिल रहा है, देयर इज एब्सोल्युटली नो मीडियम, देन वी कॉल इट एज रेडिएशन। इन द एब्सेंस ऑफ अ मीडियम, एब्सेंस बोलने से अच्छा रेडिएशन को मीडियम की गरज ही नहीं है। दिस ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सुना रहेगा तुमने ये अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में, जो सन से जो अर्थ तक जो एनर्जी आता है, थोड़ी ना स्पेसशिप में बैठ के अर्थ के उधर आके छोड़ के जाता है, थोड़ी ना ऐसे होता है। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म जो एनर्जी आता है, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। एक चीज बताओ, देख रेडिएशन तो है ही, एवरी टाइम यू विल हैव रेडिएशन। मीडियम है, मीडियम नहीं है, रेडिएशन है। बट कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के लिए मीडियम की गरज है। एक सिंपल एग्जांपल लेके बात करते हैं अभी, डायग्राम ड्रॉ करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज यू टेक अ कप, इसको चाहिए तो अगर मैंने थिकनेस के साथ ड्रॉ किया, शायद से कुछ ऐसे रहेगा। ये कप के अंदर क्या किया हम लोग ने, गर्म पानी डाल दिया, कप के अंदर गर्म पानी डाल दिया। यू हैव हॉट वाटर विच इज केप्ट इनसाइड द कप। 3D में था, शायद से मैं इसको सेक्शनल 2D में ड्रॉ करता हूं। अगर 2D में ड्रॉ किया बेटा, दिस इज हाउ द कप विल लुक लाइक, दिस इज हाउ द कप विल लुक लाइक। इसके अंदर तुमने बोला गर्म पानी भरा है, नो प्रॉब्लम भाई, गर्म पानी भर के रखा है इसके अंदर, यू हैव हॉट वाटर व्हिच इज फिल्ड इनसाइड। जरा सा सोच, मैंने जो बोला था वो सेम कांसेप्ट यहां पे अप्लाई होता है कि नहीं। तो मैं बोलता हूं यहां पे होता है, मैं बोल रहा हूं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, यहां पे फिट करने को देखो। ट्राई टू फिट दीस 3 कांसेप्ट्स ओवर हियर। ध्यान से समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। You have a water molecule, you have a water molecule, you have a water molecule, or everything is water inside that. Water, water, water. I think same medium है, same medium है। और अगर same medium रहेगा children, तो yes, you have conduction. Next, जो कप है वो obviously water का तो बना नहीं रहेगा। शायद से ये कप बना हुआ है से स्टील का कप है। तो मैं क्या कर रहा हूं, वाटर से, फ्रॉम वाटर आई एम गोइंग टू स्टील, वाटर से स्टील, लिक्विड से सॉलिड, अलग मीडियम आ गए। व्हेनेवर यू हैव डिफरेंट मीडियम्स, यस, दैट बिकम्स कंडक्शन, सॉरी कन्वेक्शन। अभी स्टील से स्टील, अगेन स्टील से स्टील, सेम मीडियम, कंडक्शन। एंड यस, इसके बाहर एयर है, एयर। तो सॉलिड से गैस गया, अगेन कन्वेक्शन। तो जरा सोच के देख, यू हैव कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। जैसे ही चेंज हुआ तो कन्वेक्शन, सेम है तो कंडक्शन। समझदार इंसान और एक चीज बोलता था, सर ये सब के अलावा अगर कुछ भी नहीं रहता मीडियम, तो भी हीट फ्लो होता था। कैसे हीट फ्लो होता था? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो यस, there is heat which is radiating out as well, and yes, you have heat flow in the form of radiation as well in this. तो तीनों form of heat transfer मैंने बता दिया। This is how heat transfer actually works. हर एक में फॉर्म कहीं ना कहीं यूज होएगा। एक दिन तुम घर से निकलो, 10 मिनट घूम के आओ इधर उधर, you will find all these modes of heat transfer. और एक एग्जांपल चाहिए तो देता हूं, अगर 100% क्लियर नहीं हुआ तो। एक कंटेनर लिया मैंने, कंटेनर को मैंने स्टोव गैस के ऊपर रखा और इसके अंदर पानी रखा। तो यस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हीट मिल रहा था बेटा, लोअर सरफेस को हीट मिल रहा है, इसके अंदर से हीट फ्लो होएगा, इसके अंदर से हीट फ्लो होएगा। कैसे फ्लो होएगा? इमेजिन कर बेटा, सॉलिड था, सॉलिड के अंदर क्या रहेगा तुम्हारे पास? कंडक्शन। फिर ये जो हीट है वो वाटर के पास गया, सॉलिड से लिक्विड के पास गया, कन्वेक्शन। फिर जो हीट है वो वाटर के अंदर ही घूमते गया, इट केप्ट ऑन मूविंग इनसाइड वाटर, कंडक्शन। फिर जो हीट है वाटर से एयर के पास गया, लिक्विड से गैस के पास गया, कन्वेक्शन। थस एंड एट द सेम टाइम ये सब मीडियम रहने दो, इसके साथ ही यही टाइम पे यहां पे यू विल हैव रेडिएशन एज वेल। तो यस, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस है। जस्ट लुक अराउंड, यू विल फाइंड लॉट ऑफ एप्लीकेशंस।
और यही सब चीज को हम लोग ये सब्जेक्ट को इन डेप्थ इन डिटेल वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड. आई विल ब्रेक दिस सेशंस इनटू फ्यू पार्ट्स. चालू करूंगा कंडक्शन से. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट कंडक्शन, एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. Then I'll go to convection and then I'll go to radiation and then we'll see whatever applications are remaining. So yes, let us start with conduction. Now conduction के लिए let me take a scenario and explain conduction for you. The scenario is very simple. अगर I take a surface, एक wall लिया, एक box लिया, solid है, not hollow. This surface is meant, I say it is heated at this surface. It is heated at this surface. जो heat मैं दे रहा हूं, that heat goes to the first molecule. ये जो molecule है, वो molecule को heat मिलेगा. You know, as soon as a molecule gets heat, heat is a form of energy. It will start vibrating. और जैसे वो vibrate होएगा, in the process of vibrating, वो अपना energy सामने वाले को दे देगा. It will just go and collide against it. और जैसे ही जाके कोलाइड करेगा वो अपना एनर्जी लेके सामने वाले को दे देगा. एंड दैट प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग टिल द हीट इज ट्रांसफर्ड टिल टू द लास्ट पॉइंट. आई एम ओनली कंसिडरिंग द सॉलिड. कन्वेक्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सॉलिड के बारे में बात कर रहा हूं. थस मैंने जो यहां पे हीट सप्लाई किया था, वो जो हीट है, इट हैज रीच्ड ऑल द वे टिल हियर. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ लैटिस वाइब्रेशन. It is vibrating at a point because of which वो अपना एनर्जी सामने वाले को पास ऑन करता है. ऐसे और एक है, there are some metals जिसको अगर हीट देने का है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है. वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के प्रोसेस में या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने के प्रोसेस में यहां से हीट लेके वहां पे चले जाते हैं. That is called as by principle of free electrons. And ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, that is by lattice vibration. दोनों तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है. बट जब भी कोई प्रिंसिपल आता है, उसके पीछे कुछ गवर्निंग इक्वेशन रहता है, और इसके पीछे जो गवर्निंग इक्वेशन है, that is called as Fourier's law. Fourier's law says जो हीट फ्लो हो रहा है, that is proportional to. सिंपल है. अगर सपोज एक सरफेस ऐसा है, मैंने बॉल रखा, इट विल नॉट रोल. बट अगर ऐसे रखा, द बॉल विल रोल. ऐसे रखा, द बॉल विल रोल. ऐसे रखा, द बॉल विल रोल. द मोर द डिफरेंस, द फास्टर इट कम्स. सेम चीज, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, उतना ज्यादा रहेगा हीट. मोर द टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, उतना ज्यादा रहेगा हीट का वैल्यू. इतने में रुक मत. अगर मैंने ये जो एलिमेंट है, इसका लेंथ बढ़ाया, व्हाट हैपेंस इज, जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना हीट को आगे जाने में दिक्कत होगा, बिकॉज उसको रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है. बिकॉज एवरी टाइम इट वाइब्रेट्स, इट विल नेवर गिव इट्स 100% एनर्जी अहेड. कभी नहीं देगा. नेवर इट विल हैपन. सामने वाले से एग्जाम में भी तुम पूछते हो, वो पूरा थोड़ी ना देता है तुम लोगों को. कुछ तो अपने पास रख के थोड़ा बहुत ही तो देगा ना तुम लोगों को. सेम चीज इधर भी होता है. ये जो मॉलिक्यूल है, वो अपना पूरा एनर्जी कभी आगे ट्रांसफर नहीं करेगा. उसमें से कुछ तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, बाकी अपने पास रखेगा. उस प्रोसेस में द एनर्जी डिग्रेड होते जाता है, और जैसे आगे जाओगे, द एनर्जी कीप्स ऑन रिड्यूसिंग. इसीलिए जितना ज्यादा लेंथ रहेगा, उतना डिग्रेडेशन ज्यादा रहेगा. दैट मीन्स लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट. मोर द लेंथ, लेस विल बी द वैल्यू ऑफ हीट. But yes, this is your formula. You know this formula cannot be used because you have a proportionality sign. To remove that proportionality sign and make it into an equal to sign, dt is fine, L is fine. You use a constant that is called K, where K is called as thermal conductivity. नाम पे ही लिखा है K का मतलब क्या है. If it is a good conductor, तो K बहुत ज्यादा रहेगा. If it is a bad conductor, K कम रहेगा. K decides. K is basically a property of a material. जैसे स्टील का K ज्यादा है. रबर का K कम है. प्लास्टिक का K कम है. एल्यूमिनियम ज्यादा है. You will see some metals, some elements will have higher K. Those are good conductors of heat. And some metals will have low K. They are very bad conductors. जो गुड के रहता है, दोज आर यूज्ड एज गुड कंडक्टर्स, जो वायर्स बनते हैं.
जिसका के कम रहता है वो बैड कंडक्टर्स है, बट बैड कंडक्टर्स को गुड इंसुलेटर्स बोलते हैं। वो हीट को जाने को नहीं देता है, हीट को स्टोर करता है। थर्मस के अंदर देखो थर्मोकोल जैसे एक चीज रहता है, दैट इज अ वेरी बैड कंडक्टर। वाई बैड कंडक्टर? क्योंकि उसका काम हीट लेना नहीं है। थर्मस का काम क्या है? हीट को बाहर जाने से रोकना था, तो हीट को अंदर ही स्टोर करके रखता है। दैट इज हाउ के वर्क्स। पर जब भी मैं के के बारे में बोलता हूं ना, ये के अपने साथ बहुत सारे प्रॉपर्टीज लेके आता है। के अपने साथ, मैं लिस्ट डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग सुनते जाओ। ये के है, उसके बहुत सारे नखरे रहते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज लेके आता है। पहला, ये जो के है, दैट इज अ फंक्शन, के इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो यस, के का वैल्यू चेंज होता है। और एक एग्जांपल देके बात करता हूं, चाहिए तो विस्कोसिटी करके एक चीज सुना रहेगा तुम लोग ने। विस्कोसिटी मतलब कितना आराम से फ्लूइड फ्लो हो सकता है। विस्कोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। गर्म करो विस्कोसिटी चेंज होता है, ठंडा करो विस्कोसिटी चेंज होता है। वैसे ही के भी है। गर्म जब भी रहता है तभी अलग बिहेव करता है, ठंडा रहता है तो अलग बिहेव करता है वो बॉडी। दैट इज, इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ के। ये के और एक तरीके से चेंज होता है। तुम देखोगे ना कोई कोई बॉडीज है जो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में सेम बिहेव करते हैं। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशंस इन एक्स वाई एंड जेड। नॉर्मली मेटल्स एग्जिबिट दिस। बट वुड का एग्जांपल लो, वुड को एक्स वाई एंड जेड कोई भी डायरेक्शन लो, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तुम देखोगे ना, कभी कभी वुड को ऐसे फाड़ना इजी रहता है, कभी कभी ऐसे काटना इजी रहता है। क्यों? बिकॉज वहां का रेजिस्टेंस या फिर उसका जो कंपोजिशन है वो अलग रहता है। तो के ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ द बॉडी इज बिहेविंग, हाउ इट इज बिहेविंग अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। किस पैटर्न में बिहेव कर रहा है उस पर भी के मैटर करता है भाई। कॉम्प्लिकेटेड इंसान है के, उतना इजी नहीं है समझना। ये सब के अलावा के का तो और एक गेम है, ये मेटल्स आता है। के इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हो तभी के का वैल्यू कम होता है। दैट मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन इट कम्स टू मेटल्स। बोलेगा सर ये तो कुछ तो गड़बड़ है, टेम्परेचर बढ़ने से मेटल बैड कंडक्टर, के कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा दे के कम होएगा, दैट मींस इट इज बिकमिंग अ बैड कंडक्टर, जबकि मेटल्स शुड बी गुड कंडक्टर्स। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी समझ जाओ। लॉजिक बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है इसके पीछे। लॉजिक क्या है? मैंने क्या बोला था, मेटल्स में हीट ट्रांसफर या हीट फ्लो दो रीजन की वजह से होता है। रीजन नंबर 1, लैटिस वाइब्रेशन। रीजन नंबर 2, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जब भी फ्लो होते हैं, मेटल्स के बाद बहुत इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मेटल्स इसके लिए बोलते हैं, तुम्हारा केमिस्ट्री जरा सा दिमाग में जोड़ दो, केमिस्ट्री में सुना रहेगा, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स के बाद कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मेटल्स क्या करता है, मेटल्स के बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी फ्लो होते हैं तभी उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर करता है, या फिर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के वजह से भी एनर्जी ट्रांसफर होता है। अभी क्या होता है मैं बताता हूं। जब तू हीट करता है मेटल्स को, मेटल को बहुत सारा एनर्जी मिलता है। जब मेटल को ढेर सारा जब एनर्जी मिलता है, बहुत वाइब्रेट होता है मेटल का मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा वाइब्रेट होता है। ये जो वाइब्रेशन है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हैम्पर करता है। हैम्पर मतलब क्या है? अगर रास्ता साफ है तो आराम से आगे जाना इजी है, रास्ता उबड़ खाबड़ है तो आगे जाने में बहुत दिक्कत होता है। यही सेम चीज रहता है, गाउठी लैंग्वेज में बताया बट दिमाग में बैठ गया रहेगा। जितना ज्यादा वाइब्रेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में दिक्कत होती है, एंड थस योर हीट फ्लो रिड्यूसेस। हीट फ्लो कम हो गया मतलब के का वैल्यू कम हो गया। बट नॉन मेटल्स इधर फायदा उठाते। नॉन मेटल्स क्या, नॉन मेटल्स के बारे में जब भी देखोगे बेटा, ये जो मैं जो भी बोल रहा हूं ना, तुम कोई भी बुक लो, तुम्हें थ्योरी तो मिल जाएगा। थ्योरी पढ़ने के लिए थोड़ी ना मेरे को देखने के लिए आए हो इधर। तुम लोग क्या है, कुछ समझने के लिए आए हो, तो समझाने का काम मेरा। थ्योरी तो क्या, कोई भी बुक ले समझ मिल जाएगा बस।
अभी नॉन मेटल्स का क्या गेम है मैं बताता हूं. इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर योर के ऑल्सो इंक्रीजेस. ना सवाल उठते हैं सर आप बोलो तो जस्टिफाई भी करो. 100% जस्टिफाई करूंगा. इसका क्या स्टोरी है. नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम रहते मतलब वेरी फ्यू. उससे ज्यादा कुछ हीट ट्रांसफर होता नहीं है. तो नॉन मेटल्स में हीट ट्रांसफर होता क्यों है. नॉन मेटल्स में हीट ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन. तो जब भी तुम हीट टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एनर्जी बढ़ता है. एनर्जी बढ़ता है तो वाइब्रेशन बढ़ता है. वाइब्रेशन बढ़ता है तो हीट ट्रांसफर भी बढ़ जाता है. हीट ट्रांसफर बढ़ता है तो के का वैल्यू भी बढ़ जाता है. यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कुछ रोल नहीं है. मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा रोल था, लैटिस वाइब्रेशन का कम था. बट यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कुछ लेना देना ही नहीं है. जो भी हो रहा है वो वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है. इस आई थिंक दिमाग में बैठ गया रहेगा. फिर बोला ठीक है सर, ये दोनों आपने बताया. मेटल्स का मतलब ग्राफ नीचे जाना चाहिए क्योंकि इनवर्स है, और नॉन मेटल्स का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का डिक्रीजिंग रहता है. बट यहां पे हर चीज में एक ऐसा आदमी रहता है जो मूड ऑफ करने को आता है. कहीं भी देखो बेटा, आजू बाजू में सब लाइफ अच्छा चलते रहते, एक ऐसा आदमी रहता है जो कीड़ा करके जाता है. वैसे इधर भी एक है. कौन है बताओ. मरकुरी. मरकुरी क्या करता है. मरकुरी मेटल्स में आता है बट वो येड़ा नॉन मेटल जैसे बिहेव करता है. दोज आर एक्सेप्शंस. यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट एक्सेप्शंस. हर चीज में होता है एक्सेप्शन. सब पढ़ के गए एग्जाम में वो आए नहीं, एक्सेप्शन ही तो हुआ वो. सेम चीज इधर मरकुरी मेरा एक्सेप्शन है. नेक्स्ट आता है बेटा मेरे पास गैसेस का क्या स्टोरी है सर, आप ये भी बता दो. अरे क्या बात है, अभी बताता हूं. गैसेस का स्टोरी कुछ इस तरीके से है. जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो के का वैल्यू बढ़ता है गैसेस में. सिंपल लॉजिक बताता हूं. गैसेस में मॉलिक्यूल्स ऐसे बहुत बिखरे रहते हैं. मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट. बराबर ना, दूर रहते हैं मॉलिक्यूल. गैसेस का डेंसिटी बहुत कम रहता है. जैसे एयर का ही लेना, एयर का डेंसिटी 1.26 रहता है. वाटर का डेंसिटी 1000 रहता है. मेटल्स का डेंसिटी 5000, 6000, 8000 तक जाता है. तो एयर का डेंसिटी 1.26 है, मतलब कितना कम है. दैट मींस मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट या वेरी प्लेस्ड अपार्ट. नाउ इसकी वजह से क्या होता है, जब भी तू एनर्जी देते हो एयर के एक मॉलिक्यूल का, कोई भी गैसेस के एक मॉलिक्यूल को, जैसे उसको एनर्जी मिलता है वो वाइब्रेट होता है. जब ये वाइब्रेट होता है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है बिकॉज व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. वेलोसिटी इंक्रीज हुआ दैट मींस इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. तो जब एक बॉडी वाइब्रेट होता है दैट मींस उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है. एंड व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इट विल गो एंड स्ट्राइक अगेंस्ट अनदर मॉलिक्यूल. वो अपना एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को दे देता है और वो भी अपने जगह पे वाइब्रेट होता है. दस एनर्जी एक जगह से लेके दूसरे जगह पे चले गया. सिंपल है. तो जितना ज्यादा वाइब्रेशन उतना ज्यादा हीट जाएगा. जितना ज्यादा वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ता है. ज्यादा हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा. तो सिंपल है, हीट ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, वाइब्रेशन ज्यादा, हीट ट्रांसफर भी ज्यादा. सब ज्यादा करके वी कॉल इट एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यस. नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास लिक्विड्स के साथ क्या है सर. हाउ डज लिक्विड्स बिहेव. मैंने बताया मेटल्स कैसे बिहेव करता है, नॉन मेटल्स कैसे बिहेव करता है, गैसेस कैसे बिहेव करता है, लिक्विड थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंसान है रे. कॉम्प्लेक्स क्या है, लिक्विड्स में भी यही सेम प्रिंसिपल आप लगा सकते थे. यस, यही सेम प्रिंसिपल. लिक्विड्स में भी मॉलिक्यूल्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, मॉलिक्यूल्स है. मॉलिक्यूल्स को हीट दो, वाइब्रेट होएगा, अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा, बराबर है. बट तकलीफ क्या पता है, लिक्विड में मॉलिक्यूल ज्यादा रहता है, डेंसिटी ज्यादा है. जितना ज्यादा डेंसिटी तो मॉलिक्यूल्स क्या क्लोजली पैक्ड रहते हैं, नजदीक रहते हैं. अगर मॉलिक्यूल्स ये नजदीक है उनमें प्रेशर बिल्डअप होता है. तो जब लिक्विड्स आता है ना, लिक्विड्स में टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों मेरे थर्मल कंडक्टिविटी को अफेक्ट करता है.
तो सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बात करना थोड़ा दिक्कत है। ओवर हियर प्रेशर ऑल्सो कम्स। सिंपल रीजन है। तो बोलेगा सर यहां भी तो प्रेशर आना चाहिए, मॉलिक्यूल हम लोग यहां पे क्यों नहीं बॉदर करते? सिंपल रीजन है, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहां पे सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन की वजह से है। या लैटिस वाइब्रेशन होने के लिए मॉलिक्यूल इतने नजदीक रहते हैं कि आपस में दोनों के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्ड रहता है, मॉलिक्यूलर फोर्स, और वो ब्रेक करने की वजह से उनको प्रेशर आता है, या मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्रेशर भी रहेगा। वो सब की वजह से प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों थर्मल कंडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। लाइक ऑलवेज देयर इज एन एक्सेप्शन, दैट इज वाटर। लेट अस फॉरगेट अबाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सब चीज में रहता है, उसको हम लोग साइड में रखेंगे। तो यस, बोम्बार्डिंग किया है बेटा, बंदूक लेके सामने खड़ा है, ऐसा एक के बाद एक के बाद एक के बाद बोलते गया। मैं कंडक्शन से चालू किया, इक्वेशन बताया, फोरियर्स लॉ क्या बताया, के को लाया, के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। एंड यस, के का जो भी प्रॉपर्टीज है, कैसे वेरी होता है, टेम्परेचर के साथ वेरी होता है, डायरेक्शन के साथ वेरी होता है, मेटल्स का के कैसे चेंज कैसे होता है, नॉन मेटल्स का चेंज कैसे होता है, गैसेस का चेंज कैसे होता है, लिक्विड का चेंज कैसे होता है, एंड एक्सेप्शंस। एंड यहां पे बेसिक्स ऑफ कंडक्शन आई हैव डन फॉर यू। लेट अस मूव हेड, आगे जाते हैं। कंडक्शन के बारे में ही बात करूंगा और थोड़ा, बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। Now, when I speak about Cartesian coordinates, I am talking about x direction, y direction, and ladies and gentlemen, z direction. ये तीन direction मिलके Cartesian coordinates कहलाता है। We call them as Cartesian coordinates. Now, Cartesian coordinates में suppose मैंने एक element लिया, let me take an element like this, placed along x, y, and z direction. x direction में आता है मेरे पास x direction, y direction, and ladies and gentlemen, z direction. You can take it either ways, I don't care. Heat x direction में भी flow हो सकता है, y direction में भी flow हो सकता है, and ladies and gentlemen, heat z direction में भी flow हो सकता है. Heat can flow in any of these directions. तो सवाल उठता है, इतने सारे डायरेक्शंस है, इसके अलावा ऐसे और कोई, जैसे मैं बोल रहा हूं पैरामीटर्स है मेरे पास, डायरेक्शंस को दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरा पैरामीटर क्या है मेरे पास? दूसरा पैरामीटर है मेरे पास, इसके अंदर कोई हीट प्रोड्यूस हो रहा है क्या? बोलेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, प्रोड्यूस होएगा ना। सपोज देयर इज सम केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड उसके अंदर, यस हीट इज प्रोड्यूस्ड। दूसरा, यहां से करंट फ्लो कर रहा हूं, यू नो व्हेनेवर करंट फ्लोस, हाथ लगा के देखो, शॉक लगेगा अलग बात है, बड़ा गर्म भी रहता है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस रहता है उसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होता है। तो यस, हीट प्रोड्यूस होने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो आई नीड टू नो समथिंग अबाउट हीट जनरेशन। हीट जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीट प्रोडक्शन। तीसरा, जस्ट थिंक, अगर तूने गैस में पानी रखा गर्म करने के लिए, गैस ऑन किया, आग एक ब्लिंक किया, पानी गर्म होएगा क्या? नहीं। गीजर चालू किया, तुरंत गर्म पानी आता है क्या? नहीं। एसी ऑन किया, तुरंत रूम ठंडा होता है क्या? नहीं। इट टेक्स टाइम। Thus, this brings me to another term that is called as time. ये तीन चीज को दिमाग में रखते हुए there is something called as general equation. General equation for conduction in Cartesian coordinates. फिर से बोलो, general equation बहुत सारी चीज को दिमाग में रखते हुए बनाया। तो एक चीज को सोच के इक्वेशन बनाया तो उसको जनरल इक्वेशन नहीं बोलते, दैट इज अ केस स्पेसिफिक इक्वेशन। एक कंडीशन के लिए एक इक्वेशन आया, तो दूसरा कंडीशन आएगा तो वो इक्वेशन यूज नहीं कर पाओगे। बट अगर सपोज तुम लोग ऐसे एक इक्वेशन बनाते हो जो बहुत सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकता है, सच कंडीशंस आर कॉल्ड एज जनरल इक्वेशंस। जनरल इक्वेशन फॉर कंडक्शन बहुत सिंपल है, इट इज डो स्क्वायर टी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा dt बाय डी टाउ। कोई भी टेक्स्ट बुक लो यार, कोई भी बुक लो, 100% मिलेगा। हो सके तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आई विल ट्राई एंड आई विल प्रूव दिस डेरिवेशन इन यू। इट इज नॉट अ बिग टास्क, इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है ये, बट यस, ये है मेरा जनरल इक्वेशन।
जो मैंने टर्म्स बोले थे सब टर्म्स का ख्याल इसमें रखा है मैंने, देख सकते हो। डायरेक्शन, जरा 3 डायरेक्शंस, आई हैव एक्स डायरेक्शन, आई हैव वाई डायरेक्शन, आई हैव जेड डायरेक्शन। हीट जनरेशन, यस आई हैव हीट जनरेशन QG, जो भी है इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव टाइम पैरामीटर आल्सो हियर। सवाल होता है सर ये क्या है, ये अजीब सा चीज क्या बना है? मैथ्स में हम लोग उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग तभी यूज करते हैं इफ देयर आर मोर देन वन वेरिएबल्स। और यहां पे है मेरे पास आई हैव एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, टाइम, इतने सारे वेरिएबल्स है। अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता तो डो ने डी बोलते थे। बहुत अनेक वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल रहेगा, वी कॉल इट एज पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसको हम लोग डो से रिप्लेस कर दिया। ये सब तो मस्त दिखता है, बट ये सब में तुम्हें एक ऐसा एक टर्म दिखा रहेगा जो थोड़ा हटके है। अभी ये सब बोल सकते, T मतलब टेम्परेचर है, एक्स डायरेक्शन है, QG हीट जनरेशन है, K, अरे लास्ट वीडियो में तो पूरा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने K का। T टेम्परेचर है, टाउ टाइम। सबके अलावा एक अजीब सा जो दिखता है दैट इज अल्फा। ये जो अल्फा है दैट इज कॉल्ड एज थर्मल, लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्फा इज कॉल्ड एज थर्मल डिफ्यूसिविटी। सुन लो अच्छे से, अल्फा इज कॉल्ड एज थर्मल डिफ्यूसिविटी। थर्मल डिफ्यूसिविटी का कंसेप्ट कुछ इस प्रकार का है, उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, K अपॉन रो सी। तुम लोग ने ना थर्मल डिफ्यूसिविटी के भाई के बारे में सुना रहेगा, मेरे को लगता है तुम लोग ने सुना रहेगा। इसका भाई है विस्कोसिटी, इसका भाई है विस्कोसिटी। सिंपल जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो। विस्कोसिटी क्या बताता है? फ्लूइड कैसे फ्लो होता है, ये हम लोग विस्कोसिटी से डिफाइन करते हैं। अगर फ्लूइड आराम से फ्लो हो सकता है तो तो विस्कोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेट। सेम थिंग, हीट कितने आराम से फ्लो हो सकता है, कैन हीट इजीली फ्लो, ये हम लोग को थर्मल डिफ्यूसिविटी या अल्फा के मदद से पता चलता है। आई होप तुम लोगों को थोड़ा सेंस बन रहा है मैं जो बोल रहा हूं। हीट फ्लूइड कैसे फ्लो होता है विस्कोसिटी से पता चलता है, हीट कैसे फ्लो होता है थर्मल डिफ्यूसिविटी से पता चलता है। इट इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यस, वीडियोस देखो अच्छा है, मेरे को देखो अच्छा है, बोर्ड पे जो लिखा है वो देखो अच्छा है, सामने एक छोटा सा नोटबुक लेके बैठो बहुत अच्छा होगा। छोटे छोटे वर्ड्स में लिख के रखो मैं जो बोल रहा हूं और भी अच्छा होगा। लास्ट में जाके उसको रिवाइज करो तो परफेक्ट हो जाएगा। 3 काम में से 1 काम मैं कर रहा हूं सिखाने का, समझने का काम तुम कर रहे हो, बट रिटेन करने का काम तुम्हारा नोटबुक या पेपर करके रखेगा। ऐसा बस टिकट के पीछे मत लिख के रखो, घूम जाएगा कल शाम को। एक अच्छा नोटबुक लो, उसमें लिख के रखो, लाइफ लॉन्ग रहेगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्फा K अपॉन रो सी, K थर्मल डिफ्यूसिविटी, सॉरी थे K थर्मल कंडक्टिविटी, रो सी इज कॉल्ड एज हीट स्टोर्ड। गेम है बेटा, ये मजेदार चीज बताने वाला हूं अभी। अगर तू चाहता है हीट आराम से फ्लो होना चाहिए, इफ यू वांट हीट टू इजीली फ्लो, तो थर्मल डिफ्यूसिविटी अल्फा का वैल्यू बेटा ज्यादा रहना चाहिए। इफ यू वांट हीट टू फ्लो, अगर तुम चाहते हो हीट फ्लो होना चाहिए तो अल्फा का वैल्यू ज्यादा रहना चाहिए। अगर अल्फा ज्यादा रहने का है, सिंपल है, K का वैल्यू ज्यादा रहना चाहिए। K ज्यादा है तो अल्फा भी ज्यादा रहेगा। मैथमेटिकली बात कर रहा हूं, कंसेप्चुअली सुनने का सुन ले। K ज्यादा है, इट इज अ गुड कंडक्टर। जो गुड कंडक्टर है वो यहां से हीट लेता है तुरंत आगे भेज देता है, गुड कंडक्टर यहां से हीट लेता है तुरंत आगे भेज देता है, गुड कंडक्टर है हीट यहां से लेता है तुरंत आगे भेज देता है। बट उल्टा भी तो गेम है इसमें। उल्टा गेम क्या है? रोसी का क्या सर? रोसी मतलब हीट स्टोर्ड है बेटा, हीट स्टोर्ड। अगर हीट लिया अपने पास स्टोर करके रखा, आगे वाले को क्या मिला? ठेंगा, कुछ भी नहीं मिला। अगर आगे वाले को कुछ नहीं मिला तो डिफ्यूसिविटी क्या हो गया? कम हो गया। तो अगर हीट स्टोर्ड ज्यादा किया तो अल्फा कम हो जाएगा, या फिर हीट स्टोर्ड कम कर तो अल्फा ज्यादा। इसका मतलब मैंने हीट लिया, मेरे पास कम से कम स्टोर किया, मेजॉरिटी आगे पास किया, तो जो आया आगे चले गया, डिफ्यूसिविटी ज्यादा है। जो आया आगे चले गया, डिफ्यूसिविटी ज्यादा है। दैट इज हाउ डिफ्यूसिविटी प्लेज अ पिक्चर। आई होप थोड़ा थोड़ा सेंस बन रहा रहेगा अभी। तो यस, अल्फा का 2 चीज है,
के ज्यादा रख, गुड कंडक्टर, हीट ज्यादा जाएगा आगे। या फिर हीट स्टोर कम रख, कम से कम हीट अपने पास रख, पूरा आगे देने के बारे में सोच, तो भी डिफ्यूसिविटी ज्यादा रहेगा। तो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कंसेप्ट फॉर थर्मल डिफ्यूसिविटी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यस कुछ कुछ लिख के रखा हो इधर, देखने की भी गरज नहीं है, जो बोलूंगा मैं वही सुनो। जो भी लिख के रखा हो, इसका ये जो पार्ट है मैंने आप लोग के लिए एक्सप्लेन करके दिया है, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हूं मैं। सिलिंड्रिकल की ओर बढ़ता हूं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से एक्सप्लेन करके दूं, एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बाद मैं जाऊंगा बेटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिलिंड्रिकल की ओर जाते हैं, सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल रखो, प्लेन रखो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर अ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, ये आ गया सिलेंडर। इसका एक छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, लेट मी कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट आउट ऑफ दिस, एक छोटा सा एलिमेंट, और इसको बाहर निकालता हूं। थोड़ा बड़ा बना लिया था सिलेंडर को, चाहिए तो जरा छोटा बना देता हूं, ये आ गया थोड़ा छोटा सा सिलेंडर। ये जो एलिमेंट है उसको बाहर निकालता हूं। वो जो एलिमेंट है अगर मैंने उसको बाहर निकाला लेडीज एंड जेंटलमैन, वो एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। थोड़ा इमेजिनेशन अच्छा रखो, 100% दिखेगा। सही बोला ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो एलिमेंट है इसके पास 3 डायरेक्शन है। एक तो ये डायरेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं भाई रेडियल डायरेक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं जेड डायरेक्शन, और एक है सर्कुलर डायरेक्शन बेटा, सर्कुलर डायरेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा डायरेक्शन। तो हीट ऐसे भी फ्लो हो सकता है, हीट ऐसे भी फ्लो हो सकता है, या हीट ऐसे भी फ्लो हो सकता है। यस 3 डायरेक्शन बताया, रेडियल डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन, इंटरनल हीट जनरेशन एंड टाइम फैक्टर। 3 डायरेक्शन कंसीडर किया हो मैंने, फिर से बोल रहा हूं, कोई भी बुक निकालो सब मिलेगा, अगर टाइम मिलता है आगे जाके 100% मैं ये डिराइव करके दूंगा। डेरिवेशन के पीछे आज के दिन पे कभी बहुत ज्यादा लोड मत लो, जब भी फॉर्मूला दिखता है उसको ब्रेक करने को सीखो कि ऐसे ही क्यों दिखता है, अलग थोड़ा क्यों नहीं दिखता है, ये टर्म का क्या सिग्निफाई करता है, या वो टर्म आया क्या, जेड मतलब क्या है, जेड मतलब जेड डायरेक्शन, सिंपल। अल्फा क्या है, अब तो तुम कभी पूछो तुम्हें पता नहीं पाना चाहिए व्हाट इज अल्फा। चलो आगे बढ़ता हूं। स्पेरिकल के लिए लेट मी कंसिडर अ स्फीयर। स्फीयर समझने आना ले दिक्कत वाली बात है रे, क्यों ले दिक्कत वाली बात है? चलो गोल है, अंडा है, तो चलो सर्कल है तो समझ में आता है, बिकॉज 2D में हम लोगों ने सर्कल इमेजिन किया है बहुत बार, लाइफ में मिला भी रहेगा बहुत बार जीरो। बट 3D में स्फीयर इमेजिन करना, उसमें से एक छोटा सा पार्ट लेना, यू नो हाउ इट विल लुक लाइक। इसमें से एक छोटा सा पार्ट अगर मैंने बाहर निकाला लेडीज एंड जेंटलमैन, it will be very 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 complicated. Every surface will be curve, सब सरफेस कर्व रहेगा बेटा, स्फीयर है ना, कहीं से भी देखो कर्व ही दिखने वाला है, कोई फ्लैट सरफेस दिखने नहीं वाला है। तो स्फीयर के बारे में देखते बेटा, यू हैव वन डायरेक्शन लाइक दिस जिसको हम लोग बोलेंगे बाय रेडियल डायरेक्शन, एक रहेगा ये डायरेक्शन जिसको हम लोग बोलेंगे थीटा डायरेक्शन, और एक सर्कुलर डायरेक्शन जो है उसको वाई नहीं बोलते हैं, उसको फाई बोलते हैं। एक तो रेडियस के अलग, एक तो ये आ गया रेडियस, ऐसे गोल घूमता है उसको मैंने थीटा बोला है, ऐसे भी गोल घूमता है, जब स्फीयर देखोगे बेटा स्फीयर ऐसे भी गोल है और ऐसे भी गोल है, दोनों गोल है, इसको मैंने थीटा बोला था और इसको मैंने फाई बोला, और रेडियली जो बाहर आता है उसको मैं रेडियल डायरेक्शन आर बोला। जो फॉर्मूला तुम लोग के सामने दिया उधर देख, हर 3 डायरेक्शन दिखेगा तुम्हें। पहला डायरेक्शन है बेटा रेडियल डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन, फाई डायरेक्शन, इंटरनल हीट जनरेशन वाला पैरामीटर एंड स्टेडी स्टेट वाला पैरामीटर। तो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरा 3 इक्वेशन व्हेन यू डील विद स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड कार्टेशियन। ये 3 इक्वेशन में मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज बताने का है। तीनों इक्वेशन साथ में लिख के रखने के पीछे एक रीजन है। रीजन ये है, अगर सपोज मैंने तीनों इक्वेशन में ये dt बाई डी टाउ वाला टर्म मैंने अगर इग्नोर कर दिया, dt बाई डी टाउ वाला टर्म मैंने अगर इग्नोर कर दिया, तो क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। जैसे ही dt बाई डी टाउ वाला टर्म इग्नोर करते हैं, जो भी इक्वेशन बचता है आप लोग के पास, दैट इक्वेशन
is called as Poisson's equation. Poisson's equation. Poisson's equation. चलो और एक चीज, अगर सपोज तुम लोग ने dt by dτ लिया, मतलब टाइम का ख्याल रखा, बट qg वाला टर्म उसको जीरो कर दिया। अगर qg वाला टर्म जीरो किया, 1 2 3 ये जीरो इक्वल टू 1 2 3 ये जीरो बट इक्वल टू जो भी बचता है, जो भी इक्वेशन दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज फोरियर्स इक्वेशन। एंड लास्ट एंड फाइनल, अगर सपोज तुमने qg को भी इग्नोर किया एंड टाइम को भी इग्नोर किया, बेटा दोनों को इग्नोर किया, न मेरे को हीट जनरेटेड चाहिए, न टाइम चाहिए, न हीट जनरेटेड चाहिए, न टाइम चाहिए, न हीट जनरेटेड चाहिए, न टाइम चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, जो इक्वेशन बचता है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज लैपलेस इक्वेशन। जस्ट मालूम रहना चाहिए, अगर कोई बोला पॉइजन्स इक्वेशन, कल जाके बोलना नहीं चले सर ने बताया नहीं पॉइजन्स इक्वेशन क्या है, नहीं बताया मैंने, लैपलेस बताया है, फोरियर्स बताया है, जनरल इक्वेशन, यस ये रहा जनरल इक्वेशन। दिस इज हाउ हम लोग ने एक फ्लो पैटर्न अब तक फॉलो किया है। चेक भी करके देखो, वी स्टार्टेड विद कंडक्शन, आई स्टार्टेड विद डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन पे आए, कंडक्शन को डिटेल में सीखा, उसके टर्म समझे, के क्या है समझा, उसके पैरामीटर समझे, वो होने के बाद वी केम टू जनरल इक्वेशन, कार्टेशियन में, सिलिंड्रिकल में, स्फेरिकल में, एंड वो तीन इक्वेशंस को ही तीन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए। तो यस, आगे बढ़ते इसमें थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं। एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन हीट फ्लो एंड फ्लो ऑफ करंट। तो पता है फ्लो ऑफ करंट और हीट फ्लो में सबसे बड़ा एक सेम कंसेप्ट है दोनों के बीच में। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, हीट एक रीजन की वजह से फ्लो होता है, दैट इज फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसका इसके पहले का इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट थोड़ा अच्छा है, वो बोलेगा सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब करंट है सर। यस, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है हीट भी फ्लो होता है। इसीलिए वो एलिमेंट्स जो गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं, दोज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। नहीं समझा? चलो और एक बार रिपीट करता हूं मैं, रिवाइंड करने की गरज नहीं, और एक बार रिपीट करता हूं। इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो होता है, दोज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो होता है, करंट भी फ्लो होता है। दोनों का डेफिनेशन सेम ही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही दोनों होता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा हीट, उतना ज्यादा करंट। तो अगर वो गुड कंडक्टर बोलता हूं मैं, किसका गुड कंडक्टर? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड करंट, दोनों साथ में चलेंगे। यस, आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड। ये मैं प्रूफ मैथमेटिकली, अगर कोई बोला सर ये मैथमेटिकली बताओ, आपने जो बोला इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में डाल के बताओ, बहुत इजी है। अगर सपोज मैंने करंट, ओम्स लॉ सुना रहेगा तुम लोग ने। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू आई आर। कोई बात नहीं, रीअरेंज कर लेते। रीअरेंज किया, आई कैन से I इज इक्वल टू V बाय R। चलो परफेक्ट है, लेट अस नॉट बॉदर अबाउट दिस। ऐसे ही मैंने तुम लोग कुछ टाइम पहले फोरियर्स लॉ करके सिखाया था। फोरियर्स लॉ क्या बोलता है? Q इज गिवन बाय द फॉर्मूला K A dt by L। मैंने तुम लोगों को जो फॉर्मूला दिया था वहां पे A नहीं लिया था, मैंने यूनिट एरिया कंसिडर किया था, बट एरिया अगर है we'll have to consider एरिया। तो अगर मैंने ये जो टर्म है इसको अगर रीअरेंज किया होता, dt को ही न्यूमरेटर में रखता, डिनोमिनेटर को L रखता, उसके डिनोमिनेटर में Ka पॉसिबल है। ये जो टर्म है, एक, ये दो, ये तीन, तुम्हें ऊपर जो इक्वेशन लिखा इसके बीच में यू विल फाइंड देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू रिलेशन। इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। करंट फ्लो होता था, यहां पे हीट फ्लो होता है। किसके वजह से करंट फ्लो होता था? बिकॉज ऑफ वोल्टेज डिफरेंस। यहां पे मेरे पास टेम्परेचर डिफरेंस है।
कोई भी फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस इधर R था, यहां पे मेरे पास रेजिस्टेंस ये है, ये रेजिस्टेंस करंट फ्लो को कम करता है, ये रेजिस्टेंस हीट फ्लो को कम करता है, करके लेट अस कॉल इट एज थर्मल रेजिस्टेंस। हीट के जगह पे करंट या करंट के जगह पे हीट, वोल्टेज के जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस के जगह में थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूले को अगर हम लोग जनरलाइज करने को देखेंगे तो यस वो भी पॉसिबल है। हीट कैन बी रिटन एज dt अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस या RTH। ये थर्मल रेजिस्टेंस बेटा तीन टाइप में आई कैन ब्रेक इट डाउन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तीन टाइप में। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, दूसरा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, और लास्ट वाला स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसका फॉर्मूला L अपॉन KA इधर ही है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसका फॉर्मूला 1 अपॉन 2 पाई LK ln ऑफ R आउटसाइड अपॉन R इनसाइड, और स्फेरिकल फॉर्मूला में R आउटसाइड माइनस R इनसाइड डिवाइडेड बाय 4 पाई R इनसाइड R आउटसाइड इनटू K। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है चार फॉर्मूलेस, या सर ये है तीन रेजिस्टेंस के फॉर्मूलेस जो तुम्हें काम आने वाले हैं, जो तुम्हें काम आने वाले 100% काम आएंगे। यूनिट्स भी एक बार चेक कर लेते ना। लेंथ का यूनिट मीटर, के का यूनिट वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन भी हो सकता है, डू नॉट वरी। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर 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 मीटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, डिग्री सेल्सियस पर वाट। नेक्स्ट 1 अपॉन 2 पाई L, L का यूनिट मीटर, K का यूनिट वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर, चेक करो मीटर 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 मीटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर गया, डिग्री सेल्सियस पर वाट। आगे रेडियस का यूनिट मीटर, 4 पाई कांस्टेंट है, रेडियस का यूनिट मीटर, रेडियस का यूनिट मीटर, के का यूनिट वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, मीटर 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 मीटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, डिग्री सेल्सियस पर वाट। इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये तो सेम आना ही चाहिए, रेजिस्टेंस है, यूनिट तो ऑब्वियसली सेम रहेगा ही। इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर यूनिट सेम है तो उसका डेफिनेशन क्या है रेजिस्टेंस का, ये देख के तुम्हें पता चलेगा रेजिस्टेंस क्या है। डिग्री सेल्सियस पर वैट, टेम्परेचर पर वैट, टेम्परेचर पर यूनिट हीट, क्या ऐसे डिफाइन करोगे? 2 मिनट का काम है। देख कितना टेम्परेचर बढ़ेगा या कितना टेम्परेचर चेंज होगा 1 वैट हीट के वजह से। 1 वैट हीट दिया या 1 यूनिट हीट दिया, उसकी वजह से कितना टेम्परेचर चेंज होएगा, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस। सच्ची बोलूं, कंडक्शन के लिए ना यही फॉर्मूला तुम लोग के लिए काफी है। यही फॉर्मूला है तुम लोग को ये टर्म डिफाइन करने का है, कौन सा रेजिस्टेंस है, अप्रोप्रिएट वैल्यूज पुट इन करने का है, एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट।